بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله فإنه أزين لأمرك كله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی انسان کی زندگی جو عطا کی ہے وہ اتباع کے لیے عطا کی ہے، بندگی کے لیے عطا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہی زندگی سب سے زیادہ مقبول ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو زندگی نبی کے طریقوں کے موافق چلی ہو، جو زندگی نبی کے سنتوں پر گزری ہو، جو زندگی نبی کے نہج پر گزری ہو. اللہ کو وہی زندگی بہت پسند ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ کی محبت نبی کے اتباع پر ہے. اللہ اگر کسی کو پسند کرنا چاہے یا جو اللہ کو پسند کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری نبی کی اتباع کرو، میری نبی کی باتوں کو مانو، میری نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، میرے نبی کے بتائے ہوئے سنتوں پر عمل کرو، میں راضی ہو جاؤں گا. اللہ کی رضامندی نبی کی اتباع پر موقوف ہے. اللہ کی رضامندی کو جو چاہتا ہے، اللہ کو جو خوش کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو تعلیمات ہمیں ملتی ہے اور اللہ کے نبی جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں وہ اللہ کی باتیں ہیں. ان هو الا وحی یوحا. اللہ کے نبی کی پوری باتیں وہ اللہ کے جانب سے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی کی بتائے ہوئے پوری باتوں پر عمل کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو تعلیمات ہمیں ملتے ہیں، ایک آدمی اس کے پیدائش سے لے کر موت تک کے پورے مراحل اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں، سیرت میں، سنتوں میں، طریقوں میں ہمیں پوری باتیں ملتی ہیں. ایک بچہ پیدا ہوا، اس وقت سے لے کر اس کا بچپنا، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کو دفنانا ہے،
तमाम चीजों का हल अल्लाह ने नबी के तरीके से हम लोगों को बता दिया। नबी के जिंदगी में हमें तालीम दे दी कि नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए पूरे तरीकों को अपनाओ। आदमी खाना खा रहा है, नबी के तरीके पर खाए। आदमी सो रहा है, नबी के तरीके पर सोए। आदमी सफर कर रहा है, नबी के तरीके पर करे। आदमी बच्चों के साथ कैसा रहे, नबी के तालीमात से सीखे। आदमी अपने माँ बाप के साथ कैसा रहे, नबी के तालीमात से सीखे। आदमी यहां तक कि अपने बीवी के पास जा रहा है तो भी नबी के तालीम से हमें तालीम मिलती है कि बीवी के पास जा रहा है तो कैसे जाए। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का तौर तरीका है। तो ऐसे ही एक तो है हमारी पूरी जिंदगी नबी के तरीकों पर चलना, हमारा उठना बैठना चलना बात करना तमाम चीजें नबी के बताए हुए तालीमात के मुवाफिक हो, नबी के सुन्नतों पर हो। इसके अलावा बाज ऐसी चीजें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से हमें मिलती हैं जिनको फुक़हा मुहद्दिसीन ने जवामिउल कलिम के नाम से मौसूम किया है। उनको जवामिउल कलिम यानी ऐसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज है जिनके अल्फाज तो बहुत कम, लिखने में पढ़ने में बहुत कम है, लेकिन उनको समझा जाए और उनके बारे में तशरीह की जाए, उनकी तफसीर की जाए, उनको बयान किया जाए तो वो इतने बड़े होंगे, उनके तशरीह उनकी तफसीर इतने बड़े होंगे कि किताबें पूरे हो जाएंगे, उसकी तशरीह से किताबें भर जाएंगी। ऐसी तालीमात नबी के कुछ अल्फाज ऐसे हैं। उनमें से ही एक हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जवामिउल कलिम में से एक हदीस जो मैंने अभी खुतबे में आप हजरात के सामने तिलावत फरमाई, जिसका कुछ हिस्सा हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं कि दखलतु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ। जाकर अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी से मैंने कहा औसीनी या रसूल अल्लाह औसीनी, आप मुझे कुछ बातों की नसीहत कर दीजिए, आप मुझे कुछ बातें बता दीजिए ताकि मैं उन बातों पर अमल करूं, ताकि मैं उन बातों से मेरी जिंदगी को मुज़य्यन करूं, ताकि मैं उन बातों से अपनी जिंदगी को संवार सकूं, ताकि मैं उन बातों से अपने लिए जन्नत का रास्ता आसान कर सकूं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस हदीस मुबारका में बहुत सारी चीजों का जिक्र किए। उनमें से सबसे पहले अल्लाह के नबी हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिस बात की नसीहत फरमाई वो ये थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया उसी का भी तक़वल्लाह, ए अबू ज़र मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की नसीहत करता हूं कि तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिल में बिठाओ, अल्लाह का डर अपने दिल में बिठाओ। इससे क्या होगा, अल्लाह के नबी एक बात बताते फिर उसका फायदा बताते, अल्लाह के नबी एक बात बताते जाते फिर उसका फायदा बताते हैं। तो ऐसे ही यहां पर अल्लाह के नबी ने सबसे पहले बताया उसी का भी तक़वल्लाह फ़इन्नहु अज़यनु लिअम्रिका कुल्लिही, कि तुम अल्लाह से डरो। अल्लाह का डर जब दिल में आ जाएगा, अल्लाह का खौफ जब दिल में आ जाएगा, तुम्हारे पूरे जिंदगी के आमाल दीन के मुवाफिक हो जाएंगे, अल्लाह के रजामंदी के मुवाफिक हो जाएंगे, अल्लाह के नबी के रजामंदी के मुवाफिक हो जाएंगे, शरीयत के मुवाफिक हो जाएंगे, नबी के मुवाफिक हो जाएंगे, दीन के मुवाफिक हो जाएंगे। कब? जबकि अल्लाह का डर तुम्हारे दिल में आ जाए। आज दुनिया में अगर कोई गुनाह कर रहा है, आज दुनिया में अगर कोई चोरी कर रहा है, आज दुनिया में अगर कोई झूठ बोल रहा है, आज दुनिया में अगर कोई धोखा दे रहा है, आज दुनिया में अगर कोई माँ बाप के साथ ठीक से पेश नहीं आ रहा है, अगर दुनिया में कोई आज अपने बीवी के हुकूक को अदा नहीं कर रहा है, आज अगर कोई दुनिया में मसाजिद का अदब व एहतराम नहीं कर रहा है, तो उसकी सबसे पहली वजह, सबसे बड़ा सबब यही है कि उसके दिल में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ नहीं है।
अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ आ जाएगा तो उसके जिंदगी के पूरे आमाल अल्लाह के रजामंदी के मुवाफिक होंगे। अल्लाह जैसे चाहते हैं वैसी उसकी जिंदगी गुजरेगी। अल्लाह का डर ना होगा तो अब अल्लाह के रजामंदी के खिलाफ उसके आमाल होंगे, उसकी जिंदगी होगी, उसका किरदार होगा, उसके अखलाक होंगे। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उसी का भी तक़वल्लाह, अल्लाह से डरने की मैं तुमको वसीयत करता हूं, नसीहत करता हूं, इससे तुम्हारी जिंदगी के पूरे आमाल दुरुस्त हो जाएंगे। मेरा दिल चाहता है कि मैं झूठ बोलूं, मेरा दिल चाहता है कि मैं रिश्वत लूं, मेरा दिल चाहता है कि मैं मेरी बीवी को मारूं, मेरा दिल चाहता है कि मैं मां बाप के साथ ठीक से पेश ना आऊं, मेरा दिल चाहता है कि मैं नमाजों को छोड़ूं, मेरा दिल चाहता है कि मैं सूद लूं, मेरा दिल चाहता है कि मैं बड़ों का अदब ना करूं, मेरा दिल चाहता है कि मैं सुबह के 8 बजे तक सो जाऊं। ये कब होगा? जब दिल में अल्लाह का डर नहीं होगा, जब अल्लाह का खौफ नहीं होगा। जब दिल में अल्लाह का डर आ जाएगा, जब दिल में अल्लाह का खौफ आ जाएगा, अब इसकी नमाज नहीं छूटेगी, अब ये झूठ नहीं बोलेगा, अब ये मां बाप को नहीं मारेगा, अब ये बीवी को नहीं मारेगा, अब ये सूद नहीं लेगा, अब ये रिश्वत नहीं लेगा, अब ये दुनिया वालों पर जुल्म नहीं करेगा, अब सबके साथ ऐसे पेश आएगा जैसे कि मेरे नबी ने बताया है, जैसे कि मेरे अल्लाह ने बताया है। इसके लिए शर्त है कि अल्लाह का डर मेरे दिल में आ जाए, अल्लाह का खौफ मेरे दिल में आ जाए। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह का डर अपने दिल में लेकर आ, अल्लाह का खौफ अपने दिल में लेकर आ, तुम्हारी जिंदगी के पूरे आमाल दुरुस्त हो जाएंगे। ये थी पहली नसीहत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू जर से फरमाए। हजरत अबू जर सहाबी थे, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी कुल तु जिदनी, और नसीहत कीजिए, और कुछ बातें मुझे बताइए। अल्लाह के नबी ने कहा अलैका बितिलावतिल कुरआन व जिक्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, ऐ अबू जर तुम्हारे ऊपर कुरान की तिलावत जरूरी है, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का जिक्र जरूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़ो, अल्लाह के जिक्र को लाजिम पकड़ो। आज दुनिया के अंदर 50 साल 60 साल हो जाए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इल्म के लिए कोई उम्र नहीं, इल्म के लिए कोई वक्त नहीं। इल्म आदमी जब पैदा हुआ है उस वक्त से लेकर मौत तक भी इल्म हासिल कर सकता है। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, इल्म बूढ़ा नहीं होता। मैं कमजोर हो जाऊंगा, इल्म कमजोर नहीं होता। मैं पुराना हो जाऊंगा, इल्म पुराना नहीं होता। तो हमारे लिए जरूरी है जुबान पलटे या ना पलटे, जुबान से पढ़ने आता हो ना आता हो, मैं सीख सकता हूं या ना सीख सकता हूं, फिर भी कुरान सीखने की कोशिश करना चाहिए, कुरान पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते अगर मर भी गए, मौत आ गई, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पढ़ने वालों के साथ हमारा हशर फरमाएंगे, कुरान पढ़ने वालों के साथ हमें उठाएंगे। जुबान नहीं पलट रही। 40 साल तक जिसको कुरान पढ़ने नहीं आया, 40 साल तक जो कुरान नहीं पढ़ सका, 50 साल तक जो नूरानी कायदा नहीं पकड़ सका, अब पकड़ रहा है। पढ़ने नहीं आ रहा, अलिफ बा ता बोल रहा है, और पढ़ने नहीं आ रहा, दरसा बोलने नहीं आ रहा। 40 साल तक जुबान से नहीं निकला हुआ जुमला 8 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में कहां से आएगा? 40 साल तक मेरी जुबान में नहीं आया, अब 1 महीने में आ जाएगा? नहीं आएगा। मेहनत करते रहना, उसके पीछे पड़े रहना। दुनिया का मामला जब हमारे सामने आता है तो हम वो काम होने तक नहीं छोड़ते। हमारा कोई गवर्नमेंट का काम कराना है, जैसे आधार कार्ड वगैरह बनाना है, मुझे नहीं मालूम, दूसरों के पास फिरते हैं, ब्रोकरों को पकड़ते हैं, जाते हैं, सीखते हैं, मालूम करते हैं। जब तक मेरा काम नहीं होता मैं उस काम के पीछे लगा रहता हूं। कुरान के मामले में क्यों ऐसा करते हैं? दीन के मामले में क्यों ऐसा करते हैं? किताब पकड़ते हैं, नहीं आता, छोड़ देते हैं। किताब पकड़ते हैं, जुबान नहीं पलट रही, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना। सीखते सीखते, पढ़ते पढ़ते हमारी मौत आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे यह बंदा दुनिया में सीख रहा था, यह बंदा दुनिया में कुरान पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी मौत आ गई है, इसको कुरान पढ़ने वालों के साथ उठाओ।
तो अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी कुरान की तिलावत को लाजिम बता रहे हैं कि कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत पढ़ो। आज दुनिया के अंदर स्कूल्स को, कॉलेजेस को हम अपने लड़कियों को, अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को, तमाम को भेजते हैं, और स्कूल वाले, कॉलेज वाले अपने बच्चों को इतना मशगूल कर रहे हैं, इतना मसरूफ कर रहे हैं कि उनको कुरान पढ़ने, उनको कुरान सीखने, नूरानी कायदा पढ़ने, नूरानी कायदा सीखने में वक्त नहीं मिल रहा। अब बच्चा आ भी जाता है, उसके जहन पर इतना जोर होता है, इतना डिप्रेशन में गया हुआ होता है, अब वो कुरान नहीं पढ़ सकता, नूरानी कायदा नहीं समझ सकता। इतना वक्त सुबह में उठता है, 7-8 बजे से स्कूल का काम शुरू, शाम के 6-7 बजे तक रहता है। अब एक आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे के लिए ज्यादा से ज्यादा मकतब को भेज देते हैं। अब वो कहां से पढ़ पाएगा? अब उसको नहीं पढ़ सकता, वो उसको नहीं समझ सकता। तो हम बचपन से ही हमारे घरों में माहौल डाले कि बच्चों को कुरान पढ़ने की आदत डाले, उसको सीखने की कोशिश करानी चाहिए। जब वो सीखेगा, उसके अंदर पढ़ने का शौक पैदा होगा, तो हम उसके अंदर जब शौक पैदा होगा तो वो रोजाना पढ़ने वाला बनेगा। कुरान को रोजाना पढ़ना, अल्लाह के नबी फरमा रहे कि ए अबू जर, याद रखो कि कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़ो। ऐसे ऐसे बूढ़े आदमी भी गुजरे हैं जिनको कुरान तो पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जब कुरान पढ़ने का सवाब मालूम हुआ तो कुरान को ले लेते थे और कुरान को पकड़कर कहते थे ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। कुरान के सफहात को पलटाते थे। कुरान को देखना भी इबादत है। तो कुरान से हमारा जज्बा पैदा होना, कुरान की तिलावत हमारे अंदर आना, कुरान की तिलावत का जज्बा, जब हम लोग कुरान की तिलावत करेंगे, जब हम लोग कुरान पढ़ेंगे, क़ियामत के दिन अल्लाह के सामने अगर कोई सिफारिश कर सकता है, अल्लाह से अगर कोई दरखास्त कर सकता है, अल्लाह के सामने अगर कोई रिक्वेस्ट कर सकता है, तो वो कुरान है। अपने कुरान पढ़ने वाले को कुरान उस वक्त तक सिफारिश करता रहेगा। अल्लाह से कहेगा, ऐ अल्लाह, ये मुझे तहज्जुद के वक्त में पढ़ता था, ये मुझे सफर में पढ़ा करता था, ये मुझे रात में पढ़ा करता था, ये मुझे दिन में पढ़ा करता था। ऐ अल्लाह, तू जब तक इसको जन्नत में नहीं डालेगा, मैं तेरे पास दरखास्त करता रहूंगा, मैं तेरे से रिक्वेस्ट करता रहूंगा, मैं तेरे से सिफारिश करता रहूंगा। ऐ अल्लाह, इसको जन्नत में डाल दे, ये मुझे पढ़ा करता था। तो कुरान ऐसी किताब है, जिंदों के लिए है किताब, मुर्दों के लिए नहीं। मर गया आदमी, पढ़कर बख्शो, पढ़ने वालों को बुलाओ, मकतब को गए, मदरसे को गए, हमारे घर में आज इंतकाल हो गया है, पढ़ने वालों को भेजो, पढ़ने वालों को भेजो। अरे अल्लाह के बंदो, ये किताब जिंदों के लिए है, मुर्दों के लिए नहीं। पढ़कर बख्शना तो अलग बात है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, कोई भी पढ़कर बख्शेगा। इसको पढ़कर अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, जो जिंदों के लिए आबे हयात बनकर आया था, हम उस किताब को मुर्दों के साथ खास कर दिया। जो जिंदों के लिए रहनुमा बनकर आया था, उस किताब को हमने घर के ठंडिक के साथ खास कर दिया। जो किताब दुनिया को संवारने के लिए आया था, उस किताब को आज हमने क्या कर दिया कि सिर्फ मुर्दों के साथ खास कर दिया। जिंदों के लिए है किताब, जिंदों के लिए। ये पढ़कर अपनी जिंदगियों को संवारो, इसको पढ़कर अपनी जिंदगियों को अल्लाह की रजामंदी के मुआफिक बनाओ, इसको पढ़कर जन्नत में जाने वाले बनो, इसको पढ़कर नबी के रास्ते को इख्तियार करने वाले बनो। ये पढ़कर बख्शने की किताब नहीं, बख्शना तो बख्शना बाद में। पहले पढ़ना, समझना, इसके मुआफिक जिंदगी गुजारना। अल्लाह के नबी की जिंदगी कुरान के मुआफिक, सहाबा की जिंदगी कुरान के मुआफिक, सहाबा के अमाल कुरान के मुआफिक। दुनिया में जब तक मुसलमान कौम कुरान को पकड़े रहेगी, वो कभी गुमराह नहीं होगी, वो जलील नहीं होगी। आज दुनिया के अंदर कुरान के तालीमात को छोड़ने की वजह से मुसलमान कौम जलील हो गई है। कुरान को पकड़ेंगे, कुरान के मुआफिक जिंदगी गुजारेंगे, दुनिया में जब तक रहेंगे, अल्लाह की कसम भी अगर मैं खाकर कहूंगा तो हानिस नहीं होऊंगा। अल्लाह के नबी की बात है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लन तज़िल्लू मा मिन तमस्सकनुम बिहिमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम लोग हरगिज गुमराह नहीं होगे जब तक तुम इन दो बातों को मजबूती से पकड़े रहोगे, किताबुल्लाही व सुन्नती।
अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़े रखो और मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ो, गुमराह नहीं होगे। तो अल्लाह के नबी हजरत अबू जर से कुरान की तिलावत की तालीम दे रहे हैं कि कुरान की तालीम, इसके मुआफिक अपनी जिंदगी बनाओ, कुरान की तिलावत करो। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, व जिक्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, अल्लाह का जिक्र भी तुम्हारे ऊपर लाजिम है। अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह को याद करो। अल्लाह को याद करना, इसी को जिक्र कहते हैं। कम से कम सुबह शाम 3-3 तस्बीहात हमें बताई जाती है। दुरूद शरीफ 100 मरतबा, इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा, तीसरा कलीमा 100 मरतबा। इसके बड़े फजाइल इत्मीनान के साथ। आज हम लोग इत्मीनान कहां कहां तलाश कर रहे हैं? आज हम दिलों का इत्मीनान कहां तलाश कर रहे हैं? आज हम दुनिया में देखते हैं आदमी अपना माइंड फ्रेश कर रहा है मोबाइल के जरिए से। आज आदमी अपने टेंशन को दूर कर रहा है मोबाइल के जरिए से। आज आदमी अपने अंदर अपने मूड को सही कर रहा है मोबाइल के जरिए से। आदमी कहता है कि आज मैं टेंशन में हूं, आज मेरा मूड ऑफ हो गया है, इसलिए अब मोबाइल के जरिए से शॉर्ट्स देखता है, हंसाने के किस्से देखता है, झूठे किस्से देखता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ऐ दुनिया में रहने वाले लोगों, क़यामत तक आने वाले लोगों, दिल का सुकून, जिंदगी का सुकून, दिलो दिमाग का सुकून हमने मेरे जिक्र में रखा है। अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है। अल्लाह को याद करने में दुनिया बनती है, अल्लाह को याद करने में आखिरत बनती है। इन झूठे किस्सों को देखने से, इन शॉर्ट्स वगैरह को देखने से दिल को सुकून नहीं मिलता। आज एक अजीब माहौल बन गया है। मोबाइलों के जरिए से अल्लाह तबारक व ताला जो वक्त दिया है, उस वक्त को हम लोग मोबाइलों में शॉर्ट्स वगैरह देखकर, वो भी झूठे किस्सों को और बेपर्दगी के मनाजिर को देखकर अपना टाइम पास करते हैं। शॉर्ट्स देखते हैं, बच्चों को देते हैं देखने के लिए। बच्चा सता रहा है, उसके हाथ में मोबाइल दो। बच्चा रो रहा है, उसके हाथ में मोबाइल दो। जब तक वो उसको देखता रहेगा खाएगा, जब तक वो उसको देखता रहेगा पिएगा, जब तक वो उसको देखता रहेगा खामोश रहेगा। जैसे ही उसके पास से ले लेंगे रोएगा। कौन बनाए ऐसा मिजाज? हमने अपने बच्चों का मिजाज हम ऐसा बनाए हैं। इससे पहले बच्चे नहीं आए, ये मोबाइल आने से पहले बच्चे नहीं थे, ये मोबाइल आने से पहले बच्चे खाना नहीं खाते थे, ये मोबाइल आने से पहले बच्चे जिंदगी नहीं गुजारते थे। लेकिन मोबाइल आया, हमने अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया। बड़ा होता है 15 साल 20 साल 18 साल 20 साल होने के बाद अब बोलते हैं कि मेरा बच्चा हाथ से निकल गया, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, नमाजें नहीं पढ़ता, मां बाप की बात नहीं मानता। ऐसा बनाने वाले खुद मां बाप है। अपने बच्चों की फिक्र करना, बचपन से ही उसको बताना। अगर आपके बच्चे के अंदर यह चीज पड़ गई है बचपन से ही, उसके सामने मोबाइल इस्तेमाल मत कीजिए, उसके सामने मोबाइल मत देखिए। हां, आपका मिजाज पहले बनाना। मैं खुद अगर मैं शॉर्ट्स देख रहा हूं, मैं खुद अगर फिल्म देख रहा हूं, मैं खुद अगर गाने सुन रहा हूं, तो मेरा बच्चा लाजिमन सुनेगा, मेरा बच्चा जरूर सुनेगा। अगर मैं मेरे बच्चे को अच्छा बनाना चाहता हूं तो जरूरी है कि मैं पहले अच्छा बनूं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सबसे पहली बात यह बताए कि अल्लाह से डरो। दूसरी बात यह बताए कि कुरान की तिलावत को जरूरी समझो और अल्लाह के जिक्र को जरूरी समझो। इससे क्या होगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़इन्नहु ज़िक्रुन लका फ़िस्समा व नूरुन लका फ़िल अर्ज़। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम तिलावत पाबंदी से करोगे, जब तुम अल्लाह का जिक्र पाबंदी से करोगे, तुम्हारा जिक्र, तुम्हारा नाम अल्लाह के पास लिया जाएगा, अल्लाह के पास लिया जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, ये साहबी हजरत अबू ज़र है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ जिब्राइल, तुम्हें कैसे मालूम कि ये हजरत अबू ज़र है? अल्लाह के नबी ने पूछने के बाद हजरत जिब्राइल कहने लगे, अल्लाह के नबी, हजरत अबू ज़र, इनका नाम अबू ज़र है, जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले जानते हैं कि इनका नाम अबू ज़र है। पूछा गया क्यों? तो हजरत जिब्राइल सलाम ने फरमाया, ये सूरे इखलास को कसरत से पढ़ते हैं, इसलिए इनको आसमान वाले ज्यादा याद करते हैं।
अल्लाह के सामने इनका जिक्र होता है। अबू जर एक नामी एक सहाबी है, वो सूरह इखलास को कसरत से पढ़ते हैं। दुनिया में एमएलए के पास गए, एमपी के पास गए, डीसी के पास गए, वहां जाने के बाद हमारा जिक्र हुआ, आने के बाद बोलते अरे भाई डीसी आपका नाम लिया, एमपी आपका नाम लिया, एमएलए आपका नाम लिया, कितना खुशी से बोलते। वो आदमी खुश हुआ था, एमएलए मेरा नाम लिया, एमपी मेरा नाम लिया, सीएम मेरा नाम लिया। हालांकि वो नाम लेने वाला भी दुनिया से जाने वाला है और मैं भी दुनिया से जाने वाला हूं। उसका नाम लेने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। अल्लाह कह रहे हैं पूरी दुनिया को बनाने वाले, मुझे पैदा करने वाले, दुनिया के जर्रे जर्रे को पैदा करने वाले, जमीन आसमान चांद सूरज सितारों को पैदा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला पूरे दुनिया का खालिक के सामने मेरा जिक्र होगा जब मैं कुरान पाबंदी से पढ़ूंगा, अल्लाह का जिक्र पाबंदी से करूंगा। ये दो इनामात हमें मिलने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला के पास अगर जिक्र होना है तो इन दो चीजों को करना। जमीन में जिक्र नूर होगा, अल्लाह का जिक्र करने से, अल्लाह तिलावत करने से, जिक्र करने से आसमानों में जिक्र भी होगा, जमीन में नूर होगा। क्या मतलब? आदमी नेक काम करना चाहेगा, उसके लिए आसानियां पैदा होगी। आदमी नेक काम करना चाह रहा, आदमी नमाज पढ़ना चाह रहा लेकिन पढ़ नहीं पा रहा, आदमी रोजा रखना चाह रहा, रख नहीं पा रहा, आदमी सूद से बचना चाह रहा, बच नहीं पा रहा, आदमी रिश्वत से बचना चाह रहा, बच नहीं पा रहा, आदमी धोखे से बचना चाह रहा, बच नहीं पा रहा। क्यों? हमारे ऊपर गुनाहों का बोझ इतना आ गया, हमारा दिल इतना सियाह हो गया, हमारे अंदर बुराइयां इतनी आ गई कि नेक काम करने का इरादा तो है लेकिन नेक काम करने के रास्ते नहीं खुल रहे। क्यों नहीं खुल रहे? क्योंकि हमारे पास ये आमाल नहीं। जब हम आमाल कर लेंगे, अल्लाह कह रहे नूरुन लका फिल अर्द, जमीन में तुम्हारे लिए नूर हो जाएगा। जब तुम कुरान की तिलावत करोगे, अल्लाह को याद करोगे, अब तुम नमाज पढ़ना चाहोगे, अल्लाह रास्ते खोलेगा। अब तुम झूठ नहीं बोलना चाहोगे, अल्लाह आसान करेगा। अब तुम रिश्वत नहीं लेना चाहोगे, अल्लाह आसान करेगा। अब तुम धोखा नहीं देना चाहोगे, अल्लाह आसान करेगा। इन दो चीजों को लाजिम पकड़ना। तीसरी बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो तीसरी बात फरमाई, पूरे मुकम्मल 7 बातों का जिक्र अल्लाह के नबी फरमाए। 7 बातें, उन 7 बातों में से तीसरी बात, जैसे मैं बता दिया, पहली बात अल्लाह से डरना, उसी का भी तक़वल्लाह, अल्लाह से डरोगे तो क्या होगा? तुम्हारे पूरे आमाल दुरुस्त हो जाएंगे। दूसरी बात, अलैका बितिलावतिल कुरआन व ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़ना, अल्लाह की जिक्र को लाजिम पकड़ना। अल्लाह को इत्मीनान से बैठकर याद करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे सामने है समझकर करेंगे, हमारी जिंदगी दुरुस्त हो जाएगी। इससे क्या होगा? आसमान में जिक्र होगा और जमीन में नूर होगा। तीसरी बात, पूरे मुकम्मल 7 बातें हैं। अब ये जुमा तो पूरे 7 बातें नहीं हो पाएंगे, ये 3 बातें जिक्र करूंगा और 4 बातें अगले जुमा। मुकम्मल 7 बातें अल्लाह के नबी हजरत अबू जर से फरमाए, 2 बातें हुई हैं बस, अब तीसरी बात सुनिए और बाकी 4 अगले जुमा इंशाअल्लाह। तीसरी बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलैका बितूल सम्त, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू जर, तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि तुम खामोश रहो। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? खामोश रहो, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, अपनी जुबान को अपने हाथ में रखो, अपनी जुबान को अपने कंट्रोल में रखो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अलैका बितूली सम्त, तुम हमेशा खामोश रहो, जब जरूरत पड़े जब बात करो, जब बोलना पड़े जब बोलो, बेतुका मत बोलो, बेमौका मत बोलो, जहां बोलना है वहां बोलो, जहां नहीं बोलना है वहां मत बोलो। आज दुनिया के अंदर जितने फितने हैं, जितने झगड़े हैं, जितने इख्तिलाफात हैं, जितने बुराइयां फैली हुई है, जितने नाइत्तेफाकियां फैली हुई है, तमाम के तमाम ये जुबान से फैले हुए हैं। आज देखिए, रिश्तेदारों में तोड़ है, रिश्तेदारों में मिलाप नहीं है, रिश्तेदारों में मिलाप नहीं है, रिश्तेदारों में मेल जोल नहीं है, रिश्तेदारों में इत्तेफाकी नहीं है, रिश्तेदारों में मिलजुल कर नहीं रह रहे। क्यों नहीं रह रहे? जुबान की वजह से। उसने यूं कहा, उसने यूं कहा, उसने ये बोला, उसने ये बोला, घर में आकर जिक्र हुआ, जुबान से बात निकली, रिश्ते टूट गए।
जुबान से ही। अल्लाह के नबी फरमा रहे अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, अपनी जुबान को अपनी कंट्रोल में रखो, अपनी जुबान को अपने हाथ में रखो। अल्लाह के नबी फरमा रहे इससे क्या होगा, फ़इन्नहु मत्रदतुन लिश्शैतान, जब जुबान तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी शैतान तुम पर हमला नहीं कर सकता। शैतान हमला करेगा, आप लोग देखे होंगे चीता, शेर, बिल्ली वगैरह कैसा हमला करते हैं, खामोशी से बैठकर एकदम उसको हमला करते हैं। ऐसे ही शैतान इंतजार में रहता है, वो हमला करता है जुबान के जरिए से। जुबान से एक जुमला निकला, भाई बहन में झगड़ा पड़ गया। जुबान से एक जुमला निकला, पूरा खानदान टूट गया। जुबान से एक जुमला निकला, दो जमातों में लड़ाई पैदा हो गई। जुबान से जुमला निकला, दो खानदानों में लड़ाई पड़ गई। अल्लाह के नबी कह रहे कि इसको तुम अपने कंट्रोल में रखो। इसके बाद क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, एक तो फायदा यह हुआ अल्लाह के नबी ने फरमाया शैतान तुम पर हमला नहीं करेगा, और दूसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन्नहु मत्रदतुन लिश्शैतान व औनुल लक फी अम्रि दीनिक, दीनी कामों में मदद होगी। जुबान को अपने कंट्रोल में रखने से दीनी कामों में मदद होगी। मैं दिन का काम करना चाहूंगा तो अल्लाह मदद करेंगे, कब, जुबान कंट्रोल में होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था कि ऐ मुआज तुम अपनी जुबान को अपने कंट्रोल में रखो। अखज़ बिलिसानी, अल्लाह के नबी अपनी जुबान को पकड़कर फरमाया था कि तुम इस जुबान को अपने कंट्रोल में रखो। हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाए थे अल्लाह के नबी लमुआखज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, क्या हमारे जुबान से निकले हुए बातों से भी अल्लाह तबारक व तआला पकड़ करेंगे। जुबान से निकली हुई बातों में हमारी पकड़ होगी, अल्लाह सजा देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया सकीलत का उम्मु का या मुआज, ऐ मुआज तुम्हारी मां तुम्हें गुम कर दे। जैसे हम लोग उर्दू में कहते हैं बेवकूफ, नालायक, बात नहीं समझता, ऐसे अरबी में सकीलत का उम्मु का या मुआज, ऐ मुआज तुम्हारी मां तुम्हें गुम कर दे, तुम्हारी मां तुम्हें गुम कर दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वहल यकुब्बुन नासु फिन्नारि अला उजूहिहिम, अल्लाह तबारक व तआला जुबान मुंह के बल पकड़कर लोगों को जहन्नम में डालेंगे जुबान से निकली हुई बातों की वजह से। एक जुमला आदमी से ऐसा निकलता है जिसकी वजह से जन्नत के करीब हो जाता है, एक जुमला ऐसा निकलता है जिसकी वजह से आदमी जहन्नम के करीब हो जाता है। जुमला, एक ही एक जुमले से आदमी जन्नत के करीब हो सकता है, एक ही एक जुमले से आदमी जहन्नम के करीब हो सकता है। तो हम अपनी जुबानों को कंट्रोल में रखना, कहां इस्तेमाल करना, कहां बोलना, क्या बोलना, ये सोचकर बोलना चाहिए। जब ही उसी वक्त हम लोग आसानी से और इत्तेफाक के साथ रह सकते हैं। दुनिया में देखिए जितने फितने हैं, जितने लड़ाइयां हैं, जितने ना इत्तेफाकियां हैं, जुबान की वजह से है। तो आखिर में जैसे मैं हर जुमा बताता हूं कि नमाजें जो पढ़ना है वो हर जुमा नहीं, हर दिन पढ़ना है, हर जुमा नहीं, हर दिन 5 वक्त की नमाज हर आदमी पर, हर औरत पर जरूरी है। जुमा में एक मर्तबा नमाज पढ़ना नहीं है। कोई फरिश्ता आकर नहीं कहा कि जुमा के दिन नमाज पढ़ो, कोई हमारा अल्लाह तबारक व तआला आयत नाजिल नहीं किया कि जुमा के दिन नमाज पढ़ो। मेरे नबी ने नहीं फरमाया कि जुमा के दिन नमाज पढ़ो। मेरे आका ने भी बताया कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह भी बताया कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, सहाबा भी बताया कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो। बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह हमारे करीब में हैं, जाकर उनसे पूछो, उनकी सीरत उठाकर देखो, जुमा में एक मर्तबा में नमाज पढ़ता हूं, ठीक है? जाकर पूछो, हां ठीक है, जुमा में एक मर्तबा पढ़ लो, बाकी नमाज मैं पढ़ लेता हूं। कोई ऐसा नहीं बोलेगा। दुनिया में देख लीजिए, आखिरत में देख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात, कुरान को देख लीजिए, नबी की तालीमात को देखिए, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। इसलिए तमाम लोग नियतें करें कि 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो जो हजरात नमाज नहीं पढ़े, सुन्नतें नहीं पढ़े, सुन्नतें अदा फरमाएं।